اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سنا تھا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے وقت بی بی الہ دادی سلام اللہ علیہ سے پانی مانگا تھا۔ جب تک بی بی پانی لاتی اتنی دیر میں امامنا علیہ السلام پر پھر سے جذبہ حق طاری ہو گیا تھا۔ جب صبح امامنا علیہ السلام جذبہ حق سے باہر آئے تو پانی دریافت کرتے ہیں تو بی بی فرماتی ہیں کہ میران جی عشاء کی نماز سے پانی کا پیالہ لے کر کھڑی ہوں۔ پھر امامنا علیہ السلام بی بی کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ 7 سال کے بعد امامنا علیہ السلام کا حال سہو اور سکر سے ملا ہوا تھا۔ سہو وہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں مشغول رہے اور سکر وہ ہے کہ اپنی ذات اور عزیزوں سے بے خبر رہے۔ 5 سال کے درمیان امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی غذا کا اگر حساب لگایا جائے تو گھی، گوشت، اناج اور دوسری چیزیں ملا کر جملہ 17 سیر ہوئے ہیں۔ راجہ دلپترائے سے جنگ میں فتح کے بعد جو مال غنیمت تقسیم ہوا اس میں راجہ دلپترائے کے بھانجے میاں سید دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان محمود نے اپنی بہن کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ دراصل اس بہن کو اولاد نہیں تھی۔ اس نیک صفت خاتون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اولاد کی طرح کی۔ اس نیک صفت خاتون کو یہ محسوس ہو گیا کہ میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ حق میں مستغرق ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میدان جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امام الاولیاء مہدی موعود علیہ السلام پر پڑی۔ اسی وقت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جذبہ حق طاری ہو گیا۔ جب اس نیک صفت خاتون سلطان کی بہن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی ظاہری دانائی نہ پائی تو اس غرض سے کہ بچے کا دل لگا رہے، آپ نے میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکریاں چرانے کی ذمہ داری تفویض کر دی، مگر میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے چین قلب کو وہاں بھی سکون نہیں ملا۔ اس کے بعد سلطان کی بہن نے میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا اور کہلوا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، قبول فرمائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی بہن نیک صفت، بہت لائق اور عارف تھی اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے تربیت یافتہ تھی۔ انہیں اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہو گیا تھا کہ میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت کے لائق ہیں۔ جب میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے میں تشریف لائے اس وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام وضو فرما رہے تھے۔ جیسے ہی دیکھا امامنا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دلاور نہیں بلکہ شاہ دلاور ہے۔ ہم نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مقبول کر دیا ہے۔ دوگانہ تحت الوضو ادا کرنے کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نزدیک بلا کر ذکر خفی کی تلقین فرماتے ہیں اور سیدھا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے مرید بنو، اور فرماتے ہیں کہ لا الہ ہوں نہیں۔ اس کے بعد ہاتھ اوپر کر کے مقرر 3 بار فرماتے ہیں کہ اللہ کے مرید بنو، اور فرماتے ہیں الا اللہ تو ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ہر 2 دم مبارک سے ہتیلی میں رائے کے دانے کی طرح عرش سے تحت الثری تک میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن ہو گئے اور اسی وقت حق کے جذبے میں مستغرق ہو گئے۔ چنانچہ امامنا علیہ السلام نے میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور حجرے میں بٹھائے۔ فرمان خدا ہوتا ہے کہ اے سید محمد ہمارے لیے ہجرت کر، کعبے کے حج کے لیے روانہ ہو جا، وہیں پر تیری دعوت ظاہر ہوگی۔ امامنا علیہ السلام بغیر کسی تاخیر کے ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت سلطان محمود حاضر ہو کر کہنے لگتا ہے کہ یہ تمام مملکت سلطنت حضرت کی ملکیت سے ہے، چاہیے کہ یہیں پر بندے کے سر پر رہیں۔ جب امامنا علیہ السلام کے ارادے سے سلطان اچھی طریقے سے واقف ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں بھی ہمراہ چلتا ہوں تاکہ صغیرہ گناہوں سے بخشا جاؤں۔ امامنا علیہ السلام نے سلطان کو ایمان کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ تمہارے ہمراہ چلنے سے دشمنان اسلام متحرک ہو جائیں گے، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائیں گے، اہل اسلام میں تفریق پیدا ہوگا۔ یہ کہہ کر امامنا علیہ السلام اللہ کی طلب رکھنے والے 12 اصحاب کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جس مقام پر امامنا علیہ السلام جاتے وہاں پر لوگ
बकसरत इमामना अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश होकर आपके मुरीद होते और दुनिया की थोड़ी पूंजी तर्क करके अल्लाह के दीदार के तालिब बनकर इमामना अलैहिस्सलाम के हमरा रवाना हो जाते। जब इमामना अलैहिस्सलाम दानापुर के मुकाम पर पहुँचे, वहाँ पर बीबी इलाहादादी सलामुल्लाह अलैह ने ये मामला देखा और गैबी आवाज़ सुनी कि तुम्हारा शौहर जो सैयद मोहम्मद है, हमने उसको मेहदी माऊद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत का बार उठाने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत का ख़ातिम बनाया है। वो साहिब ज़मां है और हमारा खलीफा है, उसकी तस्दीक कर। उसका इनकार मेरा इनकार है, मेरा इनकार उसका इनकार है, उसकी तस्दीक फ़र्ज़ है। उसकी ज़ात तमाम आलमीन के लिए सरापाए रहमत है। जो भी देखा सुना, बीबी ने इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया। वाक़े के तमाम अहवाल को साबित और दुरुस्त करार देते हुए इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर औक़ात बंदे को इस बात का हुक्म खुदा होता है कि हमने तुझको मेहदी माऊद किया है। इसका इजहार वक्त के मुताल्लिक़ है, जब वक्त आएगा ज़ाहिर हो जाएगा। इसके बाद बीबी सलामुल्लाह अलैह ने इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की ख़दमबोसी की और फरमाया कि मीरान जी, इससे पहले आपकी खिदमत में जो कसूर हुआ है उसके लिए माफ़ फरमा दें और गवार हैं कि आपके हुजूर मैंने तस्दीक कर ली है। जब आपके दावे का वक्त आएगा ज़ाहिर हो जाएगा। हासिल कलाम तमाम मुहाजिरीन को मिन जानिब अल्लाह मालूम होता है कि तुम्हारा जो मुर्शिद है सैयद मोहम्मद, हमने उसको मेहदी माऊद किया है, उसकी तस्दीक करो। चुनाचे एक एक दो दो मुहाजिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के हुजूर में पेश होकर फरमाते हैं कि मिन जानिब अल्लाह ऐसा मालूम होता है। इमामना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ही है, तुम्हारी मालूमात सही है, ऐसा होगा, ये बात वक्त के मुताल्लिक़ है। उसके बाद इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपने काम में ज़िक्र खुदा में मशगूल रहो। इसके बाद इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने ये बैत पढ़ी। बौखत्म कार मौकूफ़ अस्त बौजलत बर नमी आयत चुनागा वक्त आयत अनार बस्ता बख्शायत। इसका मतलब ये है कि काम वक्त पर मौकूफ़ है, जल्दी से नहीं होता। जब एकाएक वक्त आ जाता है तो बंद अनार भी खुल जाता है। मगर ये सारा मामला जो बीबी सलामुल्लाह अलैह इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश करती हैं और तस्दीक़ मेहदी करती हैं, ये मीरा सैयद महमूद सलामुल्लाह अलैह तमाम सुन रहे थे। 12 साल के मीरा सैयद महमूद सलामुल्लाह अलैह हुजरे के बाहर खड़े थे और ये तमाम मामला सुन रहे थे। और तस्दीक़ मेहदी की बात जब मीरा सैयद महमूद सलामुल्लाह अलैह ने सुनी तो जज्बे हक़ में मुस्तग़रक़ हो गए। इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम को फरमान इलाही होता है। आप अलैहिस्सलाम हुजरे के बाहर आकर देखते हैं कि मीरा सैयद महमूद सलामुल्लाह अलैह जाज़िब और मुस्तग़रक़ बहक़ हो गए हैं। इमामना अलैहिस्सलाम मीरा सैयद महमूद सलामुल्लाह अलैह को उठाकर हुजरे में लाते हैं और फरमाते हैं कि देखो बीबी, भाई महमूद का जिस्म तमाम गोश्त पोश्त, इस्तिग़फ़ा और बाल बाल इल्लल्लाह हो चुका है। इसके बाद लख्ते जिगर को आगोश से नीचे लाते हैं, घुटने मुबारक का सहारा देकर बिठाते हैं। बीवी सलामुल्लाह अलैह के हाथ को अपने सीने पर इमामना अलैहिस्सलाम रखते हैं और अपने हाथ को मीरा सैयद महमूद सलामुल्लाह अलैह के सीने मुबारक पर रखकर फरमाते हैं कि जो कुछ मिन जानिब अल्लाह इस सीने में डाला गया है वो मीरा सैयद महमूद सलामुल्लाह अलैह के सीने में भी डाला गया है। कुछ वक्फ़े के बाद मीरा सैयद महमूद सलामुल्लाह अलैह जज्बे हक़ से बाहर आते हैं, इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के हुजूर में पेश होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि मैं तस्दीक़ मेहदी करता हूँ। अब उम्मुल मुसद्दिक़ीन बीबी सलामुल्लाह अलैह और सिद्दीक़ अकबर सलामुल्लाह अलैह की तस्दीक़ मेहदी की तमाम बातें, तमाम मामला मियाँ दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे के बाहर से सुन रहे थे। जब इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज़ के लिए हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए, मियाँ दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदम बोसी करते हैं और फरमाते हैं कि बंदा भी आपकी तस्दीक़ करता है। उसके बाद दानापुर की हिजरत फरमाई और वहाँ पर क़याम किए। ये वही मुकाम है जहाँ पर फ़ुक़राए मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के करामात दुनिया पर ज़ाहिर हुए थे। मियाँ शेख भीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मियाँ भील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद व फ़रोख्त के लिए शहर दानापुर रवाना किया गया। दरअसल जो महदवी दायरे थे वो शहरी आबादी, शोर शराबे, दुनियावी
करोफर से दूर हुआ करते थे। उस वक्त की आबादी भी कम थी और उसकी एक वजह यह भी थी कि फ़ुक़राए दायरा के ज़िक्र खुदा में कोई खलल पैदा ना हो और वो हमेशा ज़िक्र खुदा में मशगूल रह सकें। इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म से मियाँ शेख भीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मियाँ भील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर दानापुर ख़रीद व फ़रोख्त के लिए रवाना हुए। मियाँ शेख भीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मियाँ भील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर में जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारी मर्द और औरतें गिरियाजारी कर रहे हैं, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। मियाँ शेख भीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ये क्या सबब है कि इतनी ज़्यादा गिरियाजारी कर रहे हैं ये लोग। उन लोगों में से किसी ने कहा कि हमारा एक बुज़ुर्ग सरदार था जो इंतकाल कर गया है। मियाँ शेख भीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ज़रा मैं भी तो देखूं। आपने नज़र फरमाई और कहा कि ये तो मरा नहीं, ये तो ज़िंदा है, और हाथ पकड़कर उसे उठा दिया और वो ज़िंदा हो गया। जैसे ही यह वाक़या पेश आया, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे तमाम लोग मियाँ शेख भीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने लगे। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से करामत की बला से भागकर इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तमाम लोग आपके पीछे पीछे आने लगे। इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन जाहिलों को दूर करो। ऐब से भरी हुई मखलूक बंदे पर नालायक निस्बत करते हैं। बंदा मखलूक को गैर मखलूक यानी खुदा कहते हैं। उसके बाद तमाम लोगों को दूर कर दिया गया। इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने शेख भीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि क्या मामला है। शेख भीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुनकार पर सब रोशन है। इमामना अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि शरीयत ये है कि तुम अपनी ज़ुबान से कहो। शेख भीख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुफस्सिल क़िस्सा बयान किया। इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलज़रूर तुमने अपनी रुसवाई की है। इमामना अलैहिस्सलाम ने बहुत मुतफ़क्किर होकर 3 दिन के रोज़ों की नीयत बांध कर दिन रात इबादत में मशगूल रहकर दुआ की कबूलियत की उम्मीद पर ये अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, मेरी पैरवी करने वालों को करामत की बला में मुब्तला मत कर। 3 दिन 3 रातों के बाद हक़ ताला का फरमान पहुँचा कि हमने तेरे वास्ते तेरे ताबईन को इस करामत की बला से रिहा किया, और तुझसे पहले किसी भी नबी और वली की उम्मत में हमने किसी को भी इस करामत की बला से रिहा नहीं किया था। हज़रत बंदगी मियाँ शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जज्बे हक़ में मुस्तग़रक़ छोड़कर इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हिजरत फरमाते हैं। उसके बाद आप चंदेरी के मुकाम पर जलवा अफरोज़ होते हैं। इंशाअल्लाह ताला सीरत इमामना खलीफतुल्लाह मामूर मिनल्लाह मुबय्यिन कलामुल्लाह हुज़ूर मीरा सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के इस सीरीज़ में हम आगे और भी इमामना अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल बज़्म जलील को सब्सक्राइब करें और हमारी गुज़िश्ता तमाम वीडियोज़ का भी मुशाहिदा करें। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।